So very good afternoon, everyone, and very good afternoon, dear all participants. We welcome you to the day 3 of the workshop on the theme Yoga and Mindfulness, Innovative Strategies and Practices, which is being organized on the occasion of 7th International Day of Yoga. So today we have with us very eminent speaker, Dr. Manoj Ranganar, who is the founder of the Osho Multi Services. So we will be very happy to hear him, and we welcome you, sir. And I request Dr. Vinamra Sharma, sir, he's the assistant professor, Amity Institute of Indian System of Medicines, to introduce the speaker and start the session. Thank you. Over to you, sir. Thank you, ma'am. My Sadar Namaste to all. And it's my immense pleasure to introduce Swami Bodhi Vartman, sir. Dr. Manoj Ranganath is a surname. Sir is associated with Osho Multi Services. Sir is a disciple of Osho. And as per the profile of the sir has embraced Osho new sannyas in the late 1990. Since sir is actively spreading Osho's message of love, meditation across various sections of society, ranging from school-going children to well-accomplished professionals. He frequently organizes and conducts yoga and meditation camps in various communes and ashrams spread all over the country, including Nepal. Sir is a faculty member of International Yoga Festival Organization by Government of Uttarakhand and Garhwal Mandal Vikas Nigam since 2015. Sir had participated in meditational session organized and conducted by Sir and founded him the beneficent in the connecting with the nature and self, Atma. The overall impact of meditation session have been self-transformative. Sir is presently working as a manager environment at BPHEP THDCIL Pipalco. Sir has conducted so many motivational sessions. Sir has conducted and engaged in so many meditational sessions. And Sir is associated with that Osho Ganga Dham Rishikesh. So with this, I welcome you, sir, and I invite you to produce the session and hope the participant will enjoy the sir session on Hasiva, Khelva, Dharva, Dhyanam. Sir, over to you, sir. Thank you so much, sir. Please produce. धन्यवाद। आप लोगों ने दोबारा से मुझे अपने बीच आने का मौका दिया। मैं विशेष रूप से एमिटी इंस्टीट्यूट चीफ पैटर्न डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, पैटर्न प्रोफेसर भुंदेव सी दास, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर स्वाति मदान, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनम्र शर्मा एंड स्पेशली श्री सचेंद्र बडोनी जी, जिनके माध्यम तक मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। और हसीबा, खेलीबा, धरीबा, ध्यानम जैसे नाम से ही लग रहा है हंसते खेलते हुए ध्यान में उतरना। उम्मीद है हम सक्सेसफुल रहेंगे अपने विजन को आपके बीच लाने में। तो जैसे भारतीय परंपरा है, आप दायां हाथ अपने आज्ञा चक्र हृदय चक्र पे रख लें, बायां हाथ ऊपर से रखें और हमिंग करेंगे, सिंपल हमिंग करेंगे। ओ को लंबा खींचेंगे, मां पे खत्म करेंगे और शुरू करते हैं। सांस भरे भीतर, ओ ओ ओ
यस, हंसने से हमारे शरीर में डोपामाइन हार्मोन सिक्रीट होता है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और हंसना सबसे सरल ध्यान का प्रयोग है, आप एकदम जंप कर जाते हैं नो माइंड में। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मनोरंजन के साथ साथ यह थेरेप्यूटिक है। तो कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे। आर्टिफिशियल भी जब हम हंसते हैं, यह रिसर्च हो चुकी है मेडिकल साइंस में, उसका इफेक्ट ठीक वैसे ही होता है जो नेचुरल स्माइल का होता है, नेचुरल हंसने का होता है। तो क्लैपिंग एंड लाफिंग, क्लैपिंग करने से हमारे हाथों के जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और लाफिंग मैं बता चुका हूं। तो मनोरंजन एंड थेरेपी टुगेदर। हा 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 करेंगे आप लोग। रुक जाए, आंखें बंद, शरीर को महसूस करें, पैर की उंगलियों से लेके सर की चोटी तक। फिर से करेंगे क्लैपिंग एंड लाफिंग। रुक जाए, आंखें बंद, बी लाइक स्टैचू। महसूस करें अपने शरीर को। लास्ट पूरी एनर्जी के साथ क्लैपिंग एंड लाफिंग। अब आप समझ गए होंगे, पूरी एनर्जी लगाइए, उसका फायदा होगा। रुक जाए, आंखें बंद, पूरे शरीर को महसूस करें अपने भीतर से। एक मित्र ने पूछा है, क्या बंदरों की तरह उछल कूद से ध्यान उपलब्ध हो सकेगा? क्योंकि आप बंदर हैं, इसलिए बिना उछल कूद के आपके भीतर के बंदर से छुटकारा नहीं। ये ध्यान के कारण उछल कूद की जरूरत नहीं है, आपके बंदरपन के कारण। जो आपके भीतर छिपा है उसे जन्मों जन्मों तक दबाए रहे तो भी उससे छुटकारा नहीं। उसे झाड़ ही देना होगा, उसे बाहर फेंक ही देना होगा। कचरे को दबा लेने से कोई मुक्ति नहीं होती, उसे झाड़ बुहार के बाहर कर देना जरूरी। बंदर को शांत करने के दो रास्ते। एक रास्ता है कि जोर जबरदस्ती से उसे बिठा दो, डंडे के डर से कि हिलना मत, डुलना मत, नाचना मत, कूदना मत। ऊपर से बंदर अपने को संभाल लेगा, लेकिन भीतर के बंदर का क्या होगा? ऊपर से बंदर अपने को रोक लेगा, लेकिन भीतर और शक्ति इकट्ठी हो जाएगी। और अगर इस तरह बंदर को दबाया तो बंदर पागल हो जाए। बहुत लोग इसी तरह पागल हुए, पागल खाने उनसे भरे पड़े, क्योंकि भीतर जो शक्ति थी उनको उसने जबरदस्ती दबा लिया, वो शक्ति विस्फोटक हो गई है। एक रास्ता यह है कि बंदर को नचाओ, कुदाओ, दौड़ाओ, बंदर थक जाएगा और शांत होकर बैठ जाए।
वो शांति अलग होगी, ऊपर से दबा के आ गई शांति अलग होगी। आज मनोविज्ञान इस बात को बड़ी गहराई से स्वीकार करता है कि आदमी के भीतर जो भी मनोवेग हैं, उनका रिप्रेशन, उनका दमन खतरनाक है, उनकी अभिव्यक्ति योग्य। लेकिन अभिव्यक्ति का मतलब किसी पर क्रोध करना नहीं, किसी पर हिंसा करना नहीं। अभिव्यक्ति का अर्थ है बिना किसी के संदर्भ में मनोवेग को आकाश में समर्पित कर देना। और जब मनोवेग समर्पित हो जाता है और भीतर की दबी हुई शक्ति छूट जाती है, मुक्त हो जाती है, तो एक शांति भीतर फलित होती है। उस शांति में ध्यान की तरफ जाना आसान। ये उछल कूद ध्यान नहीं, लेकिन उछल कूद से आपके भीतर की उछल कूद थोड़ी देर को रुक जाती, बाहर हट जाती। उस मौन के क्षण में जब बंदर थक गया है, भीतर उतरना आसान। जो लोग आधुनिक मनोविज्ञान से परिचित हैं, वे इस बात को बहुत ठीक से समझ सकेंगे। पश्चिम में अभी एक नई थेरेपी, एक नया मनोचिकित्सा का ढंग विकसित हुआ। उस थेरेपी का नाम है स्क्रीन थेरेपी। और पश्चिम के बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक उसके परिणामों से आश्चर्यचकित रह गए। इस थेरेपी, इस चिकित्सा की मूल खोज ये है कि बचपन से ही प्रत्येक व्यक्ति अपने रोने के भाव को दबा रहा है। रोने का उसे मौका नहीं मिला है। पैदा होने के बाद पहला काम बच्चा करता है रोने का। आपको पता है, अगर आप उसको भी दबा दें तो बच्चा मर ही जाएगा। पहला काम बच्चा करता है रोने का, क्योंकि रोने की प्रक्रिया में ही उसकी श्वास चलनी शुरू होती। अगर हम उसे वहीं रोक दें कि रो मत, तो वो मरा हुआ ही रहेगा, वो जिंदा ही नहीं हो पाए। इसलिए बच्चा पैदा हो और अगर ना रोए तो माँ बाप चिंतित हो जाएंगे, डॉक्टर परेशान हो जाएगा, रुलाने की कोशिश की जाएगी कि वो रो ले, क्योंकि रोने से उसकी जीवन प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन बच्चे को तो हम रोकते भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगता है, हम उसके रोने की प्रक्रिया को रोकने लगते। हमें इस बात का पता नहीं है कि इस जगत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका जीवन के लिए कोई उपयोग ना हो। अगर उपयोग ना होता तो वो होती ही ना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे के रोने की जो कला है, वो उसके तनाव से मुक्त होने की व्यवस्था है। और बच्चे पे बहुत तनाव है। बच्चे को भूख लगी है और माँ दूर है या माँ काम में उलझी, बच्चे को भी क्रोध आता है। और अगर बच्चा रो ले तो उसका क्रोध बह जाता है और बच्चा हल्का हो जाता है। लेकिन माँ उसे रोने नहीं देती। मनस्विद कहते हैं कि उसे रोने देना, उसे प्रेम देना, लेकिन उसके रोने को रोकने की कोशिश मत करना। हम क्या करेंगे? बच्चे को खिलौना पकड़ा देंगे कि मत रो। बच्चे का मन डाइवर्ट हो जाएगा, वो खिलौना पकड़ लेगा, लेकिन रोने की जो प्रक्रिया भीतर चल रही थी वो रुक गई। और जो आंसू बहने चाहिए थे वो अटक गए। और जो हृदय हल्का हो जाता बोझ से, वो हल्का नहीं हो पाया। वो खिलौने से खेल लेगा, लेकिन ये जो रोना रुक गया, इसका क्या होगा? ये विष इकट्ठा हो रहा है। मनस्विद कहते हैं कि बच्चा इतना विष इकट्ठा कर लेता है, वही उसकी जिंदगी में दुख का कारण, और वो उदास रहेगा। आप इतने उदास दिख रहे हैं, आपको पता नहीं। ये उदासी हो सकता था ना होती अगर आप हृदय पूर्वक जीवन में रोए होते। तो ये आंसू आपकी पूरी जिंदगी पर ना छाते, ये निकल गए होते। और सब तरह का रोना थेराप्यूटिक है, हृदय हल्का हो जाता। और रोने में सिर्फ आंसू ही नहीं बहते, भीतर का शोक, भीतर का क्रोध, भीतर का हर्ष, भीतर के मनोवेग भी आंसुओं के सहारे बाहर निकल जाते और भीतर कुछ इकट्ठा नहीं होता। तो स्क्रीन थेरेपी के लोग कहते हैं कि जब भी कोई आदमी मानसिक रूप से बीमार हो, तो उसे इतने गहरे में रोने की आवश्यकता है कि उसका रोआ रोआ, उसके हृदय का कंकन, श्वास, धड़कन धड़कन रोने में सम्मिलित हो जाए। एक ऐसे चीत्कार की जरूरत है जो उसके पूरे प्राणों से निकले, जिसमें वो चीत्कार ही बन जाए। हजारों मानसिक रोगी
ठीक हुए हैं चीत्कार, और एक चीत्कार भी उनके न मालूम कितने रोगों से उन्हें मुक्त कर जाती। लेकिन उस चीत्कार को पैदा करवाना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि आप इतना दबाए हैं कि आप अगर रोते भी हैं तो रोना भी आपका झूठा होता है, उसमें आपके पूरे प्राण सम्मिलित नहीं होते, आपका रोना भी बनावटी होता है, ऊपर ऊपर रो लेते हैं, आंख से ही आंसू बह जाते हैं, हृदय से नहीं आते। लेकिन चीत्कार ऐसी चाहिए जो आपकी नाभि से उठे और आपका पूरा शरीर उसमें समाविष्ट हो जाए। आप भूल ही जाएं कि आप चीत्कार से अलग हैं, आप एक चीत्कार ही हो जाएं। तो कोई 3 महीने लगते हैं मनोवैज्ञानिकों को आपको रुलाना सिखाने के लिए। 3 महीने निरंतर प्रयोग करके आपको गहरा किया जाता है। करते क्या है थेरेपी वाले लोग? आपको छाती के बल लिटा देते हैं जमीन पर और आपसे कहते हैं कि जमीन पर लेटे रहें और जो भी दुख मन में आता हो उसे रोके मत, उसे निकालें। रोने का मन हो रोएं, चिल्लाने का मन हो चिल्लाएं। 3 महीने तक ऐसा बच्चे की भांति आदमी लेटा रहता है जमीन पर, रोज घंटे 2 घंटे। एक दिन किसी दिन वो घड़ी आ जाती है तो उसका हाथ पैर कपने लगते हैं विद्युत के प्रवाह। वो आदमी आंख बंद कर लेता है, वो आदमी जैसे होश में नहीं रह जाता और एक भयंकर चीत्कार उठनी शुरू हो। कभी कभी घंटों वो चीत्कार चलती, आदमी बिल्कुल पागल मालूम पड़ता है, लेकिन उस चीत्कार के बाद उसकी जो जो मानसिक तकलीफें थी वो सब तिरोहित हो जाती। ये जो ध्यान का प्रयोग मैं आपको कहा हूं, ये आपके जब तक मनोवेग रोने के, हंसने के, नाचने के, चिल्लाने के, चीखने के, पागल होने के, इनका निरसन ना हो जाए तब तक आप ध्यान में जा नहीं सकते। यही तो बाधाएं हैं। आप शांत होने की कोशिश कर रहे हैं और आपके भीतर वेग भरे हुए हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं। आपकी हालत ऐसी है जैसे केतली चढ़ी है चाय की, ढक्कन बंद है, ढक्कन पे पत्थर रखे हैं, केतली का मुंह भी बंद किया हुआ है और नीचे से आग भी चल रही। वो जो भाप इकट्ठी हो रही वो फोड़ देगी केतली को, विस्फोट होगा, 10-5 लोगों की हत्या भी हो सकती। इस भाप को निकल जाने दें। इस भाप के निकलते ही आप नए हो जाएंगे और तब ध्यान की तरफ प्रयोग शुरू हो। तो ये सुनाने का ऑब्जेक्टिव ये था, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आम ध्यान साधना के बारे में हमारी धारणा बड़ी गंभीर धारणा होती है। आके जहां भी मैं पहली बार सेशन करता हूँ, लोग बैठ जाते हैं सुखासन में आंखें बंद करके, लेकिन यहाँ क्रिया के साथ अक्रिया में जाते हैं, कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज्यादा जोर देते हैं। तो कुछ लाफ्टर एक्सरसाइज हैं जो रोज सुबह हम करते हैं 8:20 से 9 बजे तक जूम पे। तो क्योंकि सभी को पसंद आती है, यहाँ हो सकता है लोग पहली बार कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है अच्छी लगेगी। ऐसा है तो दोनों हाथ ऊपर कर ले। हाथ ऊपर करने ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप, हाथ ऊपर और ऐसे करेंगे। फिर से मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला है कि पहला वेबिनार मैंने एमईटी के साथ ही किया था। पहली बार मैंने ये कहा था कि ऐसा लगता है जैसे दीवार से बातें कर रहे हो, क्योंकि लोग दिखते नहीं है दूसरी तरफ। लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो दिख ही रहे हैं और लोग भी कर ही रहे होंगे, उम्मीद इस उम्मीद के साथ करता हूँ। दूसरा ऐसे हाथ जोड़िए, इसका नाम है अभिवादन हंसी। हाथ जोड़ रहे हैं दोनों हाथ और हम करेंगे ऐसे। यस, नेक्स्ट इज बेबी लाफ्टर। ताली बजाएंगे।
जाएंगे और हंसेंगे। हा, 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 छोटे बच्चे जैसे हो जाए। यस, नेक्स्ट इज मोबाइल लाफ्टर। अपने कान से मोबाइल लगा ले, अपना फील करें मोबाइल कान पे है, और करें दिल की बातें अपने नंबर पे, जहां आपको बात करनी है। हंस हंस के बातें करें, भूल जाए लोगों को और करें बातें। ओहो हाँ हाँ हाँ, देर हो गई, थोड़ी देर हो गई, कोई बात नहीं। यस, नेक्स्ट इज स्काउट क्लैपिंग। रुक जाए, आंखें बंद कर ले, भीतर मुड़े, ढूंढे अपने वास्तविक चेहरे को। एंड नाउ कम आउट विद सिग्नेचर लाफ्टर, दैट इज योर रियल लाफ्टर। जैसे आप नेचुरल हंसते हैं, आर्टिफिशियल से हम नेचुरल की तरफ आ रहे हैं। अपने अंदाज में हंसिए, भूल जाइए अब। यस लाफ्टर मेडिटेशन पे बड़ी रिसर्च हुई है, आप गूगल में डालेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इतना इफेक्टिव है कि आप घंटों के ध्यान प्रयोग से जो नहीं होता है, वो एक बार हंसने से होता है। आप नो माइंड में चले जाते हैं एकदम से। इसलिए आप एनर्जेटिक होते हैं हंसने के बाद। तो हंसते खेलते दोस्तों को ढूंढिए, हंसते खेलने वाली एक्सरसाइज करिए। और ऐसा भी पाया गया है कि अगर कोई आदमी किसी ऐसी बीमारी से है जिसका इलाज नहीं है, लाफ्टर मेडिटेशन उसमें इफेक्टिव हुआ है। और अगर आप जीवन में हंसते नहीं है तो आपको बीमारी भी पकड़ सकती है। तो हंसना अति लाभदायक है। तो मैं एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी के तहत दूसरी एक करेंगे, पुअर ब्रीदिंग टू प्रॉपर ब्रीदिंग। हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़े लेंगे, धीरे धीरे लेनी है, धीरे धीरे सांस लेनी है, और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे नीचे आते हुए। फिर से फिर छोड़ेंगे, एक बार फिर से, सांस छोड़ेंगे। अब स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी, सेकंड, जैसे गाड़ी सेकंड गियर में डालते हैं। अब थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में पूरी एनर्जी के साथ। अब जो लोग खड़े हैं वो जंप भी कर सकते हैं। स्टॉप। अब मैं नंबर बोलूंगा, आपको नंबर के अकॉर्डिंग खुद ही ब्रीथिंग करनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ में जंप भी है। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट,
फिफ्थ जो जंप कर सकते हैं, स्टॉप, आंखें बंद, वन, थ्री, टू, फोर, पूरी स्पीड से, स्टॉप, रुक जाए, आंखें बंद, ध्यान पूरा भीतर, पूरे शरीर को महसूस करें, अब धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को आपस में मस लें, आंखों के ऊपर लाएं और रिलैक्स, और एक ठाका लगाएं जोर का। ध्यान हमें थोड़ा गंभीर बनाता है, मेडिटेशन एंड सेलिब्रेशन, मेडिटेशन और सेलिब्रेशन टुगेदर। ठीक, एक जिब्रिश आप लोगों ने किया है, जिब्रिश, जिब्रिश, ठीक, तो जिब्रिश है ऐसे शब्द बोलना जिनका कोई अर्थ नहीं है। दरअसल म्यूजिकल सपोर्ट नहीं पा रहा मुझे। ऐसे शब्द जैसे जैसे आप चाइनीज बोलिए, फारसी बोलिए, उर्दू बोलिए, मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी टेक्निक शेयर कर रहा हूं, जो आपको अच्छी लगे आप अपने स्थान पर कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव आपके साथ यही है, शेयर करने का। तो आप चाइनीज बोलिए, फारसी बोलिए, उर्दू बोलिए, वो भाषा मत बोलिए जो आपको आती है, आपको दूसरी भाषा बोलनी है। ठीक, तो आंखें बंद कर लें और शुरू करें ऐसे। Apakataga jagadara namala rabagadaga jagadara bagadogo jagadara gado bagadogo chugodora gado bagadala la bagadora gado la bagadaga gado bagadogo yabagadaga jagadara gado chugodora gadaga la bagadaga jagadora gado bagadaga yabagadaga rabagadogo chugodora gado bagadogo jagadara bagadogo chugodora gidi gidi chugodara la bagadara gado bagadogo chugodora gadaga jagadara gado jagadara gado bagadogo gado yabagadaga jagadara la bagadora gado chugodora gado chugodora Yabagadala Rabagadala Jagadara. Stop. रुक जाए, आंखें बंद, यस। आज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है, ये मैं थोड़ा इसकी भूमिका बना रहा था, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा लगता है एकदम से पहली पहली बार अगर कोई करता है तो
डायनामिक ब्रीदिंग, आज के इस कोविड के दौर में तो सबसे ज्यादा जो असर आ रहा है हमारे फेफड़ों पे ही आ रहा है, जहां भी आ रहा है। तो अगर आप 10 मिनट की इस ब्रीदिंग को करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके फेफड़े अति मजबूत होंगे। डायनामिक ब्रीदिंग क्या है? हम नॉर्मल जिंदगी में प्रॉपर सांस नहीं लेते हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करी थी, उसका नाम था पुअर ब्रीदिंग टू प्रॉपर ब्रीदिंग। उसी का एक्सटेंशन रूप है डायनामिक ब्रीदिंग। तेज, गहरी, अराजक सांस। जैसे सांस छोड़िए, आप अपने हाथ को रखिए, हाथ नाक के पास लाइए और फिर बढ़ाते जाइए, दूरी सांस महसूस हो, मतलब दूर से भी हाथ पे टच कर रही हो छोड़ने वाली सांस। ये सुबह सुबह का प्रयोग है। सुबह सुबह वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन रहती है। तो और आज की मैकेनिकल लाइफ में जो सिविलाइज वर्ल्ड है, इसमें हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। हमारे पूरी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिलती नहीं है। और फेफड़ों की जो एल्वेलाई है, अभी डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन 30% ही एक्टिव होता है, 70% सोया पड़ा होता है। इस तरीके से रेशियो है। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपके फेफड़े पूरे के पूरे काम करेंगे। और कोविड में सबसे ज्यादा असर इस फेफड़ों पे ही आ रहा है। तो बॉडी की इम्यूनिटी और लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसमें म्यूजिक सपोर्ट करेगा। तो जो अटेंडी है वो कितने लोग अटेंड कर रहे होंगे प्रोग्राम? चलिए मैं करता रहता। 20 मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोग। हाँ सर। 28 सर स्टूडेंट हैं अभी और विद फैकल्टी भी हैं सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। तो Friends, some of the बढ़िया रहेगा, students सभी can लोग come खड़े as हो a- जाएं। है? I'm just informing some of the students they can be a panelist, so they will enjoy. अच्छा Okay, sir, carry on. Thank you. हाँ, नहीं वो भाई यही इस मीडियम में यही होता, पता नहीं लगता सामने क्या हो रहा है। ठीक। तो डायनामिक ब्रीदिंग में तेज, गहरी, अराजक सांस आप लोग सभी करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा खुद ही। तो यहाँ डेमो के लिए कर रहे हैं। सामान्य यह सुबह सुबह का प्रयोग है, क्योंकि सुबह सुबह ऑक्सीजन शुद्ध होती है। ठीक। म्यूजिक सपोर्ट करेगा इसमें। तेज, गहरी, अराजक सांस। Breathing. Yes. गहरी, अराजक is more important, most important. अराजक का मतलब है कोई रिदम ना बने, ऐसी सीधी रिदम का ना हो जैसे संगीत की एक धुन बनती है। कभी लंबी सांस हो, कभी छोटी सांस हो, कभी आड़ी तिरछी हो। ये डिमोन्स्ट्रेशन के लिए है, कभी भविष्य में कर सकते हैं, ये आपको अंदाजा आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और सुबह 8:20 पर जूम पे हम करते हैं। तो 2-3 मिनट के लिए करेंगे।
सेकंड चरण में है कैथारसिस। जो भी आपके मन पे सप्रेशन है, रोना, चिल्लाना, हंसना, नाचना, कूदना, जो भी आपके भीतर क्रोध दबा हुआ है उसको हवा में फेंकना। ये भी बेस्ट एक्सरसाइज सुबह सुबह की करेंगे। Enter the third step. इसमें आपको पागल हो जाना है। आप होशपूर्ण है लेकिन आपके भीतर जो पागलपन है उसे बाहर फेंकते हैं। दिन भर में जिस आदमी को हम नमस्ते नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, उसे नमस्ते करनी पड़ती है, तो जो पॉइजन होता है वो हमारी बॉडी में आ जाता है। पूरे 24 घंटे में आप पॉइजन से भर जाते हैं। तो ये वाला 10 मिनट आपको देता है कैथारसिस का, कि जो भी शरीर आपके भीतर दमित भाव है, रोने का, चिल्लाने का, हंसने का, किसी के प्रति गुस्सा है, उसे हवा में निकाल दें। हवा में निकालना है, न कि उस आदमी के प्रति। अगर आप उसको याद करके करेंगे वो डैमेज हो सकता है, ऐसा कभी ना करें। तो सेकंड चरण ये है। तो आज के आदमी के लिए पहले चरण में था शरीर की शुद्धि, शुद्ध ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी। दूसरे में है मन की शुद्धि, मन की शुद्धि। तो डेमो के लिए फिर करते हैं। देखो ये तीसरा चरण है इसका, मंत्र का। इस तरीके से करके स्टॉप, बैठ जाए। आंखें बंद कर लें, बैठ जाए। बैठ जाए शांत। घर 24 में निकाली। Now start the first step. भव्य की गुंजन के साथ नाद ब्रह्म ध्यान।
मैं आपको नादब्रह्म ध्यान के बारे में बता रहा था, जिसके ऊपर स्टडी हुई है। ये डायनामिक ब्रीदिंग का डिमोन्स्ट्रेशन भी इसलिए किया गया है कि कोविड के दौर में ये बड़ा पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि यह सुबह सुबह की है एक्सरसाइज। इस टाइम केवल डेमो के लिए बताई गई। और नादब्रह्म ध्यान शाम का ही है। इसमें आप सुखासन में बैठ जाते हैं, सुखासन में बैठ गए और दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें ऐसे, और बैठ जाएं, हाथ नाभि केंद्र के पास रखें और हमिंग करेंगे। हम हमिंग गहरे से हमिंग करेंगे ऐसे। आंखें बंद रहेंगी, ध्यान दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पे, और हमिंग करेंगे नाभि केंद्र से। अभी सुन ले पहले इसके बारे में। नादब्रह्म ध्यान मैं भी तो कहूंगा, एक घड़ी 24 घड़ी में निगरानी लेनी चाहिए। जब कुछ भी ना कर, खाली बैठ जाओ और कर लो, जीभ को चालू से लग जाए तो रीढ़ सीधी हो। तुम ओठ से आवाज बाहर मत निकालो, अंदर ही गुंजाओ, लेकिन गुंजाओ इतने जोर से कि बाहर के लोगों को सुनाई दे। ओठ से ना मिले, सुनाई दूर पड़े, तुम्हारे रोए से मिले, तुम एक फूल बन जाओ। बड़ा मीठा अनुभव होता है, भीतर से अमृत झरने लगता। तुम सिर्फ आंख बंद करके रीढ़ सीधी करते, सीधी इसलिए ताकि तुम्हारे बीच सारा खून सीधा खड़ा हो जाए, तुमको गुंजाने लगो। करो इतने जोर से कि बाह कोई गुजर रहा हो तो सुनाई पड़े। जिससे मधुमक्खी का जब फैला रहा हो तो एक गूंज मालूम पड़ती है, ऐसी गूंज बाह मालूम पड़ती, और वो गूंज तुम्हारे शरीर को भी वस्त करेगी, तुम्हारे बिखरे मन को बांधेगी, और तुम्हारे भीतर एक अपूर्व स्मृति का जन्म होगा और एक मसी छा जाएगी। आंखें बंद, ध्यान दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पे, लेकिन और हमिंग करेंगे। कि बाहर लोग नहीं पड़े, जिससे मधुमक्खियों का चला जा रहा हो।
गहरे से गहरे नाभि केंद्र से आंखें बंद, ध्यान दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पे। हमें भंवरे की तरह गुंजन। आंखें बंद रहेगी। भंवरे की तरह गुंजन।
बस सुने। कुछ ना करें, बस सुने। आंखें बंद ही रखें। मौन, सुनना अति सरलतम ध्यान का योग है। जो भी आवाजें आपके आसपास हो रही हैं, पंखे की खटर खटर, एसी के चलने की आवाज, लोगों की बातचीत, मोबाइल की घंटी, बच्चे का रोना, गाड़ी का हॉर्न, उनसे कोई विरोध ना ले। सुने
पूरा फोकस सुनने पर कर लें। स्वीकार भाव कर लें चारों तरफ के। वातावरण से सामान्यतया ध्यान साधना करने वाले लोग अपने आसपास के वातावरण से दुश्मनी ले लेते हैं, विरोध ले लेते हैं, बजाय शांत होने के अशांत हो जाते हैं। ओशो स्कूल ऑफ मेडिटेशन कहता है आसपास के वातावरण से मित्रता कर लें, स्वीकार कर लें पूरी तरीके से। तो जो भी आवाजें, जो भी खटर पटर, जो भी गाड़ी का हॉर्न, मोबाइल आपको डिस्टर्ब कर रहा था, वही आपको गहरे ध्यान में उतरने में सहायक होगा। ध्यान बीच बाजार में अगले कुछ पलों के लिए सुनना, मात्र सुनना हो जाए। शरीर बिल्कुल हिले डुले ना, रीढ़ सीधी, शरीर लचीला और आनंद भाव के साथ सुनना चारों तरफ की आवाजों को। सजग, सुनने में फोकस कर लें, पूरा ध्यान सुनने पर। स्वीकार भाव। स्वामी जी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है? नहीं, साउंड पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आ रहा। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है अभी। अभी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मैं सुनना सरलतम ध्यान का प्रयोग है। जो भी आवाजें आपके आसपास घट रही हैं, आप बस उन्हें सुने। यहाँ तो मैं आपके साथ सूत्र शेयर कर रहा हूँ, आप व्यक्तिगत जीवन में इनका प्रयोग कर सकती हैं, कर सकते हैं। क्योंकि सामान्यतः जब हम पूजा भी करते हैं तो बजाय शांत होने के डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसका असल कारण ये होता है कि हम आसपास के वातावरण से विरोध रखते हैं। जैसे ठीक उसी टाइम बच्चा रोएगा, उसी टाइम गाड़ी का हॉर्न बजेगा, उसी टाइम मोबाइल बजेगा, तो हम और डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ हम ये सलाह दे रहे हैं कि आप उनके प्रति पॉजिटिव हो जाएं, जो भी डिस्टर्बेंस आपको लगती हैं या होती हैं सचमुच। तो जैसे ही आप उनके प्रति पॉजिटिव होते हैं,
तो उसी रेशियो में आप गहरे ध्यान में चले जाओ। अंतिम 1 मिनट के लिए सुनना। दोनों हथेलियों को आपस में मस लें, धीरे धीरे आंखों के ऊपर लाए और धीरे धीरे ध्यान से बाहर। थोड़ा सा ऐसे इंटरेक्टिव रखते हैं तो 1 वे ट्रैफिक हो रहा, मैं ही बोले जा रहा हूँ एक तरफ, पता नहीं जो पार्टिसिपेंट्स है वो कर रहे हैं या क्या? पार्टिसिपेंट्स कर रहे होंगे सर, एक्चुअली अच्छा, पता नहीं चल रहा है। they cannot be a panelist here, so among us we are we are here only. आप लोगों को कैसा लग रहा है? Yes sir, we are really enjoying. Laughter session is very good. I enjoyed a lot. Like refreshed. हाँ, You felt like yourself, your body has become very light and refreshed. हाँ, उसमें मैं पूरी टेक्निक नहीं करा पाया, मुझे लगा माहौल बनता हुआ नजर नहीं आया। Actually, yes, you are right, sir. हमारी कंडीशनिंग है, माइंड की कंडीशनिंग है। ये हंसने के नाम पे, मतलब धर्म के नाम पे हंसना तो एकदम उल्टा समझते हैं, योग के नाम पे तो और फिर बस ऑर्डर देने लगे, ऐसे लगता है। इसमें भी योगा फेस्टिवल में भी ऐसे ही होता है। So Dr. Rachna Mehta ma'am is here. Ma'am, in between that session, ma'am has raised the hand. Ma'am, may I request to kindly interact with the Swamiji, Dr. Rachna Mehta ma'am. I think some issues, audio issues from the ma'am side. So please continue, sir. Sachin Vadoni sir is here, in the panel. Dr. D.D. Vichis sir is here. Sir, namaskar. नमस्कार, नमस्कार। Sir, I have seen your program in Yoga Festival, Rishikesh, अच्छा, हाँ जी, Ganga Resort. हाँ, गंगा रिजॉर्ट हर साल होता है। एक प्रॉब्लम आती है, हाँ जी, वहाँ देखा था मैंने, मैं पूरा अटेंड करता हूँ वहाँ पर सारा सेशंस कई लोगों के। बस एक प्रॉब्लम आती है, वो मैं जो महसूस करा कि जब हम मेडिटेशन में आपके यहाँ बैठते हैं तो जो घंटियां बजती है ना, जितनी देर में हमारा ध्यान लगता है उतनी देर में दूसरी घंटी बजती है, फिर झटका सा लगता है, फिर थोड़ा ध्यान लगा है, फिर घंटी बजी, फिर झटका लगा। वो क्या ध्यान लगने से पहले टूट जाता है, उसका मेथड बताया कि टूटे नहीं। तो घंटी इतनी तेज बजती है, जैसे हम ध्यान में जाते हैं अभी एंट्री करने से पहले वो घंटी बज जाती है और एक झटका सा एक जर्क लगता है तो वापस हो जाता है। ये अभी वाली बात कर रहे हैं जो अभी कर रहे थे हम? अभी कर रहे थे, पहले भी मैंने किया इसके साथ इस तरह का, और तो इसमें ये नहीं, प्रॉब्लम आती है। वो ना वो बहुत सॉफ्ट म्यूजिक है, वो यहाँ म्यूजिक परफेक्ट जा नहीं रहा था, मैं भी महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पूरा नहीं किया। नहीं, ये मैंने पहले भी अटेंड किया,
उसमें मेरे को जो प्रॉब्लम आई कि हम जब ध्यान देते हैं या तो एक यूनिफॉर्म साउंड आए, जब यूनिफॉर्मिटी टूटती है तो आपका ध्यान लगने से पहले टूट जाता है। या जो मैं कह रहा हूँ ये मैंने महसूस और कई बार ट्राई करा कि कुछ हो, लेकिन बिफोर is an exit because of the sound is very sharp at the end। पहले आपका वाइब्रेशन आया, चलता रहा, जितनी देर वाइब्रेशन अच्छा जा अच्छा एंट्री किए, नेक्स्ट घंटी बजी, उसके बाद वापस फिर घंटी बजी, अंदर अंदर बाहर हो रहे थे, लेकिन उसमें जो एग्जैक्ट जो कंटिन्यूटी है वो सिंपल एंड विदाउट, आई मीन इट शुड बी कंटिन्यूअस वाइब्रेशन, नॉट ए जर्क और नॉट अप डाउन। ये मेरा अपना सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने अपना ना ना, एक्सपीरियंस ये जो प्रयोग हम अभी कर रहे थे, आप उसकी बात कर रहे हैं या कहीं और आपने देखा है? नहीं आपके साथ अभी कर रहे हैं जो? हाँ जी, इसमें क्या ना, जैसे साउंड एक चल रही है, उसका दूसरी नहीं साउंड नहीं, आई। अच्छा ठीक। ये नाद ब्रह्म दरअसल 1 घंटे का प्रयोग है और यहाँ पे समय की सीमा है, और नए नए लोग हैं एकदम से जो अभी उससे ये हैबिचुअल नहीं, नाद उनको योग मैंने अटपटा लगेगा। पहले भी अटेंड करा आपका, पर तो मेरे को तब भी यही प्रॉब्लम आई कि जैसे हम आनंद लेना शुरू करते हैं तब दूसरा बेल बजती है, बेल बजती है, हमारा ध्यान टूट जाता है। बिफोर एंट्री वी हैव टू नहीं, जो मैं एग्जिट। बीच में कमेंट्री दे रहा था कि दरअसल हम चीजों से विरोध ले लेते हैं, उस कारण हम डिस्टर्ब होते हैं। और अभी आपका पॉइंट ठीक समझ नहीं आ रहा। बाकी ये जो प्रयोग है ये तो बड़े लंबे रिसर्च के बाद हुई है, उसके बाद ये निकाले गए हैं, नहीं, ये और मेरा इसमें अपना तो कॉपीराइट मानना है, जो करा भी नहीं सकते आप, मतलब मैंने मानव करा पहले रहा भी हूँ तो। किया, पहले भी आपके साथ किया और किसी और के साथ भी किया, तो इसमें बस एक ही प्रॉब्लम आई कि जो बेल बजती है ना बीच में, टन से बजती है, टन करा आपने, वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन था ठीक है, जब नेक्स्ट टर्न आता है उस दौरान में जैसे हम आनंद में जाते हैं उससे पहले दोबारा से एक झटका लगता है कि हमें वो आनंद टूट जाता है। ये ऐसा मैंने महसूस किया, शायद और लोग महसूस करते होंगे या नहीं करते मुझे नहीं मालूम, बट इसका अभ्यास बताएं कि कैसे चलिए किया जाए। देखते हैं, फिर देखते हैं, आप भी देखिए मैं भी देखता हूँ, उसको सोचता हूँ। हाँ, क्योंकि ये मैंने कई बार कोशिश किया। I think it should be a continuous one vibration sound which will be more helpful instead of giving the jerk or up down। अप डाउन होते हैं, आप भी खुद भी अप डाउन होते रहते हैं। ये मैंने महसूस किया, जैसे हम एंट्री करते हैं एंट्री से पहले एग्जिट हो जाता है, देन वी आर ऑन वाइब्रेशन, एंट्री एग्जिट, मतलब एंट्री, बिफोर एंट्री यू एग्जिट, बिफोर एंट्री यू एग्जिट, दिस द वे। आई थिंक विचित सर, मुझे लगता है सर का जो व्यू है वो इट इज मींस प्री स्टेट ऑफ द ध्यान, धारणा। फर्स्ट वी मींस जो घंटी है, वो घंटी है that will realize that we have to concentrate, we have to start the focus on particular point, and the घंटी is the sound is a part of that dharana। हाँ नहीं, आप इसको जो मैंने बताया ना आपको, आप खुद इसको म्यूजिक को लेके 10-15 मिनट 20 मिनट कोशिश करिएगा, जैसे वो आप बहुत ही आनंद में आना शुरू करते हैं, उसे जैसी नेक्स्ट साउंड होती है देन यू रिवर्ट, जस्ट ऑब्जर्व, आप खुद करिए, 1 आध घंटे बैठिए। नहीं, वो हर आदमी के अलग अलग अनुभव होते हैं, वो आपका अनुभव है। हाँ, और यस मुझे यस, लग मैंने रहा अपना है बताया, एक ही पॉइंट मैंने पर आई हमारी मे बी कैसेट रॉन्ग। अटक गई है, इसको बदल देते हैं अभी, हाँ जी, वो मैंने मतलब बदल मैं देते हैं। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मैंने थर्ड टाइम कराया। हाँ, वो रिपीट हो रही है बार बार बार। हाँ हाँ, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सर, प्लीज प्रोसीड सर, थैंक यू सर। दरअसल एक लिमिटेशन और हो रखी है, मेरा म्यूजिक सिस्टम दूसरे पे काम, नहीं सर, आपका मतलब म्यूजिक सुना मैंने, भी नहीं कर पा रहा। बहुत आनंद आता है, बिल्कुल मदमस्त हो जाते हैं, पूरा देखा है मैंने, और बड़ा फास्ट म्यूजिक, बहुत डीप होता है, बड़ा आनंददायक होता है। ऋषिकेश में मैंने आपके साथ किया। तो चलिए एक और टेक्निक शेयर करते हैं, बिना म्यूजिक, बिना किसी चीज के, क्योंकि ये भी, इससे भी हमारा बंधन हो जाता है कि संगीत नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, और ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न दोनों वो है। ओम मंत्र सिंपल है, और ये सभी लोग जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ा ही पावरफुल है, बहुत सिंपल है। ओम को जो ओशो के या जितने भी ध्यान प्रयोग है वो शरीर पे शुरू होते हैं, मन पे जाते हैं, और तीसरा चरण साइलेंस में जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में हम सबसे पहले साइलेंस में बैठते हैं, जो कि आज के आदमी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि भगवान पतंजलि के टाइम पे, भगवान बुद्ध के टाइम पे, भगवान महावीर के टाइम पे प्रकृति डिफरेंट थी। लोग
नदी से पानी लाते थे, जंगल से लकड़ी लाते थे, दिन भर मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, तो आसान था कि आंख बंद करके बैठ जाए। आज का जो आदमी है लग्जरियस लाइफ जी रहा है, एसी कार में चल रहा है, एसी घर में चल रहा है, एसी सब कुछ उसकी चीजें, हाई प्रोटीन फूड ले रहा है, तो वो एनर्जी उसकी कहीं लग नहीं रही, कहीं फिजिकल वर्क। यहाँ पे सारा जो प्रयास है पहले फिजिकल वर्क का है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अंत में हम साइलेंस में आते हैं। तो इस अप्रोच के साथ यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रयोग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओम का उच्चारण करेंगे तीन तीन चरण में। पहले चरण में तो मुखर रूप से करेंगे ओम 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 ओम। दूसरे चरण में मन के अंदर ही अंदर करेंगे, मन के अंदर ही अंदर करेंगे, और तीसरे चरण में शांत हो जाएंगे। मैं घड़ी की टाइमिंग के हिसाब से देखता हूँ। शर्मा जी करें है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तक मैं लगभग 3-4 ये टेक्निक की टाइमिंग वगैरह सब आप अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं, जो जो मैं कह रहा था। डॉक्टर नेहा ये है भी सर बड़ी हमारे साथ, पावरफुल। डॉक्टर नेहा है हमारे साथ पैनल में, मैं सर, और पूरा एंजॉय कर रही है वो सेशन। हाँ हाँ, वो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सबसे पहले वही हंसी थी, तो मेरे को लगा चलो ठीक है। मुझे लगा काम ये मीडियम, ये नया मैडम, पिछली बार जब मैंने किया था तो पहली लाइन मैंने यही कही थी कि सेमिनार तो बहुत किए, जैसे वो स्वामी जी कह रहे हैं, वो सर कह रहे हैं कि योगा फेस्टिवल में, लेकिन वेबिनार में पहली बार कर रहा था। वेबिनार में ऐसा लग रहा है दीवार से बात कर रहे हो आप, सामने बात कुछ है ही नहीं, आप बात नहीं कर रहे हो। एक्चुअली ये सर यही वे है, एक्चुअली सबको यही फील हो रहा है, बिकॉज हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स से एक इंटरेक्टिव वे में बात करते आए हैं, बट ये प्लेटफॉर्म थोड़ा डिफरेंट लगता है। सो हाँ बट हाँ हाँ दिस हाँ। इज अ न्यू लर्निंग, दिस इज ऑल्सो न्यू लर्निंग। नहीं, लेकिन इससे बड़ा फायदा हुआ, मेरी रोज चलती है जूम पे क्लास। मैं हाँ शर्मा जी को लिंक भेज दूंगा, वो आगे भेज सकते हैं, जी और जी, भेजा भी था। तो ठीक है सर, उसमें लोग इसका इसकी अपनी वो मतलब पॉजिटिव साइड है इसमें। बिल्कुल मतलब सुबह बिल्कुल, सुबह जूम में कोई कनाडा से जुड़ा हुआ है, कोई मनाली एग्जैक्टली से जुड़ा हुआ है, कोई गोवा से जुड़ा हुआ है, जगह जगह से लोग जुड़े हुए जी जी जी, ये हैं। और अभी भी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन गया इससे, हाँ आपकी जी हाँ जी लिमिट, हाँ जी, आप बहुत ग्रो कर सकते हैं इसमें। जी सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये ओम मंत्र 3 चरणों में है। पहले चरण में मुखर रूप से बोलेंगे ओम 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 ओम। दूसरे चरण में मन के अंदर ही अंदर बोलेंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, अब भीतर ही भीतर गुंजायमान करेंगे। और तीसरे चरण में आप शांत हो जाएंगे। तो हमारे मंदिरों को देखा होगा आपने, गुंबद शेप होती है, गुंबद शेप, उसके जी पीछे कारण ये है, जब वहां ओम मंत्र की ध्वनि होती है तो वो ऊपर गुंबद से टकराती है, और उसके अंदर वाइब्रेशन चेंज होती है। ये मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ, आप घर में जहाँ भी पूजा करते होंगे, जो कुछ करते होंगे, आप करेंगे, रोज करेंगे, अगर लगातार एक ही स्थान पे, मतलब 5-5 चीज के चरण में भी कर सकते हैं, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, तो आप देख रहे हैं वहां की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। और बच्चे भी कर ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ सार्थक चीज जाए, ये सफल रहेगा। तो करते हैं, हृदय चक्र पे रख लेते हैं, ये भी ज्यादा अच्छा है। दाएं हाथ रखें और बाएं हाथ ऊपर से, और आंखें बंद कर लेंगे, करेंगे ओम 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 ओम
Om 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 पूरी एनर्जी के साथ ओम 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 करते रहे ओम 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 आनंद भाव के साथ ओम 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 ओम
ओम ओम पूरी एनर्जी के साथ ओम 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 दो ओम के बीच बिल्कुल जगह न बचे ओम 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 पूरी ऊर्जा लगाए ओम 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 दूसरा चरण मन के अंदर ही अंदर करें अब सुखासन में बैठ के हाथ दोनों हाथ क्रॉस करके गोद में रख लें और करेंगे मन के अंदर ही अंदर मन ही मन में पूरी एनर्जी के साथ
पूरी एनर्जी के साथ करें। शांति से शरीर को ढीला छोड़ दें, आराम से बैठ। आँख बंद करनी हो बंद कर लें, आँखें खोलनी हो खोल लें। अब मैं सुझाव दूंगा, मेरे सुझावों के साथ अपने को करें। शरीर स्थिर हो रहा है, बिल्कुल ढीला छोड़ दें जैसे कोई काम में। शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। कुछ भी ना करें, तीसरे चरण में बैठे रहें, शांत, मौन। शरीर शांत हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, मन भी शांत हो रहा है, भाव करें, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। शरीर, मन
भाव शांत हो रहे हैं। भाव करें भीतर सब ठहर गया, सब शांत हो गया। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में मसले, आंखों के ऊपर लाए। ध्यान से जब भी बाहर आए धीरे धीरे आए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेडिटेशन इज माय हॉबी। आई लव टू शेयर विद पीपल, क्योंकि हमारी भी लाइफ कभी कभी हम भी रोते हुए चेहरे के थे। अब लोग कहते हैं यार कितने हंसते हो। Thank you so much, sir, for enlightening session. And everyone, I think, hopefully, have enjoyed this. Laughter session was amazing, and your meditation practice is also amazing. So, if anyone, any participant, they have any query, they can ask in the chat box or among the participants. Manish, ya Bhavna, any question from your side, you can ask. Over to you. Otherwise, over to you, sir. Vinamra, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. It's a very wonderful or amazing session, because everything is the yoga. Means Yes. what we are doing in our life, and which means give the happiness, give satisfaction, and gives that means by which we can analyze ourselves, what we are, who am I, and the self-realization is a part of that yoga, we can say. So really that either it may be there are various paths of the yoga: bhakti yoga, jnana yoga, karma yoga, raj yoga, but the laughter yoga, music yoga, dance yoga. So actually ये बिल्कुल आनंद योगा, या बिल्कुल is the part of life, sir. यस 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 एक और चीज होता है सर, हंसवा खिलता सबसे बड़ा योग है मस्ती। सबसे Yes. बड़ा योग है मस्ती। और Yes, जितना sir. मस्ती को अपने अंदर से ला सकते हो, हमारी Yes, मस्त sir. अपने आप में, तो वो सबसे बड़ा योग हुई। हर चीज में योग है सर। अभी जैसे सर ने इतने अच्छे से कहा कि सबसे डिफरेंट चीज थी कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलो, दैट इज न्यू, एंड दैट पार्ट वाज एक्चुअली, अगर आप सोचो तो अगर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करें तो हम हिलेरियस अपने आप हो जाएंगे, एंड यू विल बी रिलैक्स्ड। यस, आपने हाँ, जल्दी पकड़ लिया। हाँ नहीं, बहुत अच्छी चीज थी, That was बहुत amazing. डिफरेंट। कभी हाँ, कभी दैट वाज करते डिफरेंट हैं, सर। उसमें 5 मिनट रखते हैं, सारे तोतला बोलेंगे। हाँ ये बिल्कुल, दिस इज अ चाइल्ड थेरेपी, और ये हम जो भूल गए हैं ना कि यू शुड फील चाइल्डिश, वो वाला पार्ट बहुत ही अलग और बहुत अच्छा था सर। everything is the fine, sir. Everything. यस एग्जैक्टली। वो जिब्रिस के पीछे मैं बताता हूँ आपको, सबके पीछे एक स्टोरी है। ये जब्बार एक संत थे, तो उनके पास कोई भी आता था ज्ञान लेने के लिए, तो वो यही कहते थे तू बोल जो मर्जी बोलना, तुझे बोल जो भी करना, और भी बोल बोल के हल्का हो जाता है। फिर क्या है, सारे ध्यान के प्रयोग नो माइंड में जाने के लिए, निर्विचार में जाने के लिए। तो अगर आप नॉन लैंग्वेज बोलेंगे, दिल्ली, बम्बई, ऋषिकेश कुछ बोलेंगे, पीपल पढ़ेंगे, तो उसके साथ आपका थॉट एसोसिएशन है, वो चलता है पूरा। फिर थॉट एसोसिएशन, आपने कुत्ता शब्द बोला, कुछ आपकी अच्छी मेमोरी होगी, बैड मेमोरी। लेकिन जब आप बोलते हैं अमागादाला भगुदा, हमारे भगुदा का जगह भगुदा का जगह चाइनीज बोल रहे हैं, तो थॉट एसोसिएशन नहीं हो जाता, नहीं हो पाता, तो आप आसानी से निर्विचार में जा सकते हैं। एक सर अभी
साधनाएं तो निर्विचार में जाने के लिए है ना। Direct stresses can be removed by saying this अरे, language. Yes, movie आई थी, yes. 2000 Every stress can be बाहुबली। removed. हाँ, yes. बाहुबली मूवी आई थी सर। स्ट्रेस फ्री मेडिटेटिव क्लास नाम से भी करता हूँ, ऐसे करता हूँ, स्ट्रेस फ्री मेडिटेटिव। Yes. सर बाहुबली मूवी आई थी सर, एंड वी हर्ड दैट कि उसमें एक नई भाषा को बनाया गया था उस मूवी के लिए स्पेशली। तो उसमें जो अच्छा। हाँ सर, तो वही जो अभी आपने कुछ भी बोल के मतलब जो हंसने वाली बात है, तो रियली मेक अस टू सेंस दैट That yes. From And it is today's scientific. हंसना मतलब जस्ट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साइंटिफिक है। हाँ language, yeah. The sense of this language that what we are speaking in irrelevantly is the sense is that we are make ourselves happy. yes. Yes. And we are emptying our mind. जो हमारा mind में खट्टा है वो हम निकाल रहे हैं. निकाल रहे हैं और हाँ, That exactly. is the mantra of this session, sir. That is the mantra I have taken from this. सर आपसे Yes. हमारा तीसरा Whenever विजिट I है, will be in stress, हर बार I will start आनंद speaking this बढ़ता है। language. भाई 3rd क्लास बट ऑनलाइन है, बाकी 2 क्लास मैंने आपके ऑफलाइन ली थी ऋषिकेश में, तो पूरा आनंद लिया था तब हमने, और म्यूजिक भी बड़ा लाउड होता है, पूरा आनंद लिया था। और ये 3rd टाइम में और आनंद हर बार बढ़ रहा है, जो नई नई चीज आप बताते हैं। वेरी नाइस, आई एम वेरी थैंकफुल टू अमेठी एंड विनम सर और स्वाति मैडम जो आपको बुलाया, मेरे को बड़ी खुशी है। और आपको दोबारा आपके सचिंद्र दर्शन भदौनी हुए, सर अगर हो तो यहाँ पे सचिंद्र भदौनी सर का पैनल में है, थे अभी शायद चले गए हैं शायद। दर्शन हो गया आज भी, मुझे बहुत खुशी हुई सर। सचिंद्र भदौनी सर की हम धन्यवाद देते हैं सर। ही इज द मैन हु दैट गिव द रेफरेंस ऑफ द सर। अच्छा, पहले मैं वीडियो में नहीं था बिकॉज आई वाज ड्राइविंग। Okay. आई डोंट वांट दिस। रियली इज अ वंडरफुल सेशन। Okay. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you for joining us. Dr. Rachna Thank you, Mehta sir. ma'am is here, ma'am. Dr. Okay. Rachna Mehta ma'am. I think some issue from the ma'am side. Ma'am, please, Swati ma'am, please. Yeah, so I'm saying the assessment form has been sent, and kindly all the participants please submit it. And thank you for joining us. Keep healthy, keep laughing. This is the mantra I have taken from this. And we wish sir ki our team will visit from your center and will really Yes, sir. Yes. try Yes, to get yes. something, sir. Yes. And Rishikesh that मैं अमेठी में बहुत साल पहले आया था, और अच्छा। एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, उनकी किताबें भी हैं, उनके साथ आया था। फोटोग्राफी मेरी हॉबी रही है, मेरे जो फोटोग्राफी के सर थे वो उसको कवर करने आए थे, मतलब उन पे फिल्म बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्री। उनकी मोटिवेशन स्पीच थी, तब भी मेरे मन में आया था यार कभी मुझे ही मौका मिलेगा यहाँ। तो अरे ऑनलाइन तो आ गया हूँ, ऑफलाइन ही मैं आना चाहूंगा एक बार, क्योंकि लाइव अलग ही बात है। अभी पता नहीं चल रहा। Live session is amazing, sir. Particularly Yes. for laughter. मैं चाहता हूँ कि offline क्लोजिंग है। करेंगे हम लाफ्टर के साथ, साइलेंस में Yes, करेंगे, sir. एकदम साइलेंस में बिल्कुल, नमस्कार बिल्कुल। करेंगे। Yes, sir. मैंने जैसे कहा क्लैपिंग करने से क्या होता है कि एक्यूप्रेशर के पॉइंट एक्टिव होते जी हैं, जी और लाफिंग से डोपामाइन हार्मोन, में एग्जैक्टली साइंटिफिक मेडिकल साइंस की बात बता रहा हूँ That आपको, कोई is- मेरी yes. कपूल कल्पित। डोपामाइन हार्मोन सिक्रीट होता है, उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो दोनों चीजें थेरेपी है। मनोरंजन तो अपनी जगह है, लेकिन थेरेपेटिक वे में कर रहे हैं, तो आप करेंगे और जैसे ही स्टॉप होगा रुकेंगे और साइलेंस में सेशन समाप्त। अभी कुछ कहना है क्या औपचारिक रूप से? बस सर सबको थैंक नहीं, यू sir. करना है हम लोगों को, सब पार्टिसिपेंट्स को कल से ज्वाइन करेंगे। और नहीं सर, एक और मैं कहना चाह रहा था कि हम आपके सेंटर से हमारे स्टूडेंट और कैसे बेनिफिटेड हो सकते हैं, मींस दे कैन लर्न समथिंग, दे कैन मींस वी कैन जॉइन विद द सेंटर विद सम एक्टिविटीज एंड ऑल। ये अभी जो मैं रिले भी जहाँ से हो रहा है, ये ओशो गंगा धाम ऋषिकेश में, ब्रह्मपुरी में आश्रम है हमारा। जी सर, जी सर। ब्रह्मपुरी में यहाँ पे ये गतिविधि चलती रहती है, एक्टिव होती रहती है, हमेशा चलती रहती है। कोविड में अकेला ये सेंटर है जो खुला हुआ है, ओशो गंगा धाम ऋषिकेश। ओके सर, वी विल ट्राई टू कनेक्ट यू यहाँ भी आपके स्टूडेंट्स आए, और अगर यहाँ पे कोई रुकता नहीं है तो वो खाने पीने से लेके ध्यान करने तक सब फ्री है। रुकेगा तो ही चार्जेस होते हैं, ये अकेला आश्रम ऐसा होगा। और जो क्योंकि यहाँ पे तो एक सैंपल के तौर में, ट्रेलर के तौर में थे, वो डायनेमिक मेडिटेशन बहुत प्रभावशाली है जो मैंने आपको बताया था। उसका पहला पार्ट इसलिए करा रहे, वो ब्रीदिंग ऑक्सीजनेशन के लिए बॉडी, और कैथारसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके अंदर कचरा दबा हुआ। एक थी जिब्रिस में हम अनर्गल बोल रहे हैं, और कैथारसिस में जो सप्रेस इमोशन है अंदर, रोने के, चिल्लाने के, हंसने के, क्योंकि सिविलाइज सोसाइटी में हम हंस भी नहीं सकते। आप हंसेंगे तो लोग बोलेंगे दिमाग खराब हो गया तेरा, तो रोना तो बहुत दूर की बात है। तो आपके अंदर जो गुस्सा है सब आप हवा में निकाल सकते हैं।
ऐसे वो पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी आदमी यहाँ पे आता है उसे अच्छा लगता है। मोस्ट वेलकम, कभी भी आप बना सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो लाफ्टर के साथ खत्म करते हैं। नाइस सर। ठीक, तो क्लैप उसके बाद मौन में खत्म कर देंगे। मैं ही नमस्ते करूंगा फिर। चाहे आंखें बंद कर लें और वॉच योर थॉट्स। जो भी थॉट आपके मन में चल रहे हैं, अच्छे हो, बुरे हो, पवित्र हो, सिविलाइज हो, उनको बस देखें, उनसे लड़े मत। ध्यान साधना की दृष्टि से विचारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, लेकिन संसार में मैं भी विचार से ही आपसे बात कर रहा हूं। वॉच योर थॉट। जैसे ही आप विचार देखने लगते हैं, विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आप शांति की ओर अग्रसर होते हैं। सेकंड राउंड, क्लैपिंग एंड लाफ्टर। वॉच योर ब्रेथ। सांस भीतर आ रही है, भीतर आ रही है, भीतर आ रही है। आपका पेट उठ रहा है। पेट के उठने बैठने पर फोकस कर ले। महसूस करें पेट के उठने को और बैठने को। लास्ट राउंड पूरी एनर्जी के साथ, आनंद के साथ। जाए, आंखें बंद। शरीर, मन, भाव साक्षी हो जाए शरीर के, मन के, भावों के। Thank you, everyone. Thank you, all of you, for joining us.